So now we are going to discuss under this chapter about the different part of the human body that will participate in the sexual reproduction. And we know that because the human belongs to the group of animal that has organ system level of organization. कैसा organization है? Organ system level. That means for different processes there are different organ systems are there. For digestion we have digestive system, for excretion we have excretory system, for respiration we have respiratory system. तो अलग अलग organ systems है हमारे पास, and thus to perform the reproduction in our body, the reproductive system is there. Because two different sexes are there, male and female. So male have male reproductive system and female have female reproductive system. So now we are going to discuss about the male reproductive system. What we are going to discuss? Male reproductive system. That means an organ system in the body of male human that will participate in the reproduction process by formation of gametes. Is it clear? Is it clear, beta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The male reproductive Yes, sir. system, the first is the location. Where it is located. So it is located in pelvic cavity. Where it is located? Pelvic cavity. देखो बेटा हमारी बॉडी में जो ऊपर कंधे की हड्डी है इसको बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, और जो कूल्हे की हड्डी है इसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल. हमारी बॉडी की जो कैविटी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे एक डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर का पार्ट थोरेसिक कैविटी, नीचे का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी. अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको भी हम दो पार्ट में बांध सकते हैं. जो ऊपर का हिस्सा जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज अपर एब्डोमिनल कैविटी, और नीचे का जो हिस्सा जहां आपकी पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी. सो यू कुड आल्सो से द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is present in the lower abdominal cavity, or you could say the pelvic cavity. Is it clear? Yes, sir. Now it has Yes. 4 parts. The male reproductive system is made up of 4 parts. Total कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है. The first is the testis. अगर प्लूरल लिखेंगे तो स्पेलिंग होगी TES TES, और अगर सिंगुलर लिखेंगे तो TES TIS. Singular is testis and testis. Okay, so first component is the testis, second is the accessory ducts, third one is the glands, and the fourth one is the external genitalia. Genital organ. That is your penis. So these are the 4 component of male reproductive system in human: testis, accessory ducts, accessory glands, and external genitalia. So now we are going to discuss each and every component in detail. हर एक component को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द टेस्टिस. जो पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज द टेस्टिस. द नंबर ऑफ टेस्टिस इज 1 पेयर. एक जोड़ी टेस्टिस सभी मेल्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. What is the meaning of primary sex organ? Primary sex organ होने कहने का मतलब ही क्या है? That means these are the gonads. ये क्या है? ये मेल के गोनाड्स है. मुझे जल्दी से बताओ कि किस ऑर्गन को हम गोनाड कंसीडर करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो वो हो गए जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, The organ that participate in reproduction, they are called reproductive organ. But gonad किसको बोलेंगे? Organ which produce gametes is called gonad. आपकी बॉडी का वो ऑर्गन जिसमें गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? गोनाड बोलते हैं. फॉर सपोज इन माय बॉडी दे आर टेस्टिस, इन सम ऑफ योर्स बॉडी दे आर ओवरी. क्लियर?
भाई मेरी बॉडी में लीवर या लंग्स या हार्ट में तो गैमिट्स नहीं बन रहे ना, कहाँ बन रहे हैं? टेस्टिस में बन रहे हैं. दैट मीन्स मेरी बॉडी में गोनाड्स क्या है? दे आर द टेस्टिस. सो द टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल ह्यूमन बिकॉज इन देम द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट दे आर द गोनाड्स. इनको हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर देम एज द गोनाड्स. नाउ देयर लोकेशन, they are located outside abdominal cavity. ये abdominal cavity के बाहर प्रेजेंट होते हैं इन ए स्किन पाउच. स्किन के पाउच के अंदर, एंड दैट पाउच ऑफ स्किन इज कॉल्ड scrotum. What is the name of that skin pouch that contain the testis? It is called scrotum. तो कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से एक स्किन पाउच है which is the scrotum, and inside the scrotum the testis are located. Testis इस scrotum के अंदर लोकेटेड होते हैं. Now what is the benefit? अब सवाल उठता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो भैया टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है? Why they are outside the abdominal cavity? इसका एक आंसर है बेटा, टेस्टिस क्या है? They are gonads. तो इनको क्या परफॉर्म करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की प्रोसेस होती है 35 to 35.5 डिग्री सेल्सियस पे. कितने टेम्परेचर पे होती है? 35 या 35.5 डिग्री सेल्सियस पे. और आप देखते हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है बेटा? व्हाट इज द जनरल नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? यस, 37 degree. 37. That means for the spermatogenesis the temperature which is required it lower than the body temperature. Spermatogenesis के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से कम है. अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो तो उन्हें टेम्परेचर क्या मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस, एंड thus they will fails to perform spermatogenesis. वो स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, साइंटिस्ट और भी ये बात बोलते हैं कि अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो तो इस केस में क्या होगा? इनको हाई टेम्परेचर मिलेगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, और इस म्यूटेशन की वजह से स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होगी, और म्यूटेशन की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा अगर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होंगे, और बाय चांस अगर अंदर है तो हाई टेम्परेचर की वजह से स्पर्म्स में म्यूटेशन पॉसिबल है. क्लियर? Yes, sir. नाउ अब सवाल उठता है कि क्या टेस्टिस हमेशा ही बाहर होते हैं? इसका आंसर है, इन अवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ मेल देयर इज अ कैनाल प्रेजेंट. एक कैनाल प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड इग्विनल कैनाल. व्हाट इज कॉल्ड? इग्विनल कैनाल. एंड बाय दिस इग्विनल कैनाल, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कैसा है? हाई है या लो है? इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली testis can be ascended into the abdominal cavity and testis can be descended into the scrotum. That means environmental temperature के accordingly testis को inguinal canal के through abdominal cavity में लिया भी जा सकता है, और abdominal cavity से बाहर scrotum में निकाला भी जा सकता है. Is it clear? क्योंकि गर्मियों के मौसम में आप देखते हो कि बाहर का टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो बाहर के 40 से बेटर तो अंदर का 37 है ना. बात समझ में आई बेटा? No, sir. बेटा बाहर का टेम्परेचर भी कोई स्टेबल तो नहीं है. बॉडी के बाहर टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि 35 डिग्री सेल्सियस, ये घटता बढ़ता रहता है. हमें क्या करना है? टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर देना है. तो
तो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है तो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में वापस ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इग्विनल कैनाल. दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. क्या सभी Yes, sir. मैमल्स में टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं?